اس بلیٹن کا آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں انسداد دہشت گردی تیسرا ترمیمی بل 2020 سینٹ سے مسترد ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی تیسرا ترمیمی بل 2020 کی حمایت میں 31 اور مخالفت میں 34 ووٹ آئے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں انسداد دہشت گردی تیسرا ترمیمی بل 2020 سینٹ سے مسترد۔ انسداد دہشت گردی تیسرا ترمیمی بل 2020 کی حمایت میں 31 اور مخالفت میں 34 ووٹ آئے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما مولانا اسد محمود کا کہنا ہے کہ FATF سے متعلق بل کی حمایت نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی بل کے خلاف ووٹ دینے پر رضامند کریں گے۔ اجلاس ہو رہا ہے تو اپوزیشن کے عمائدین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ابھی اس پر مشاورت بھی ہوگی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو قائل کر سکیں کہ جو جمعیت علماء کا اور متحدہ مجلس عمل کا اس حوالے سے نقطہ نظر ہے، ہم ان کو۔ آپ کا نقطہ نظر کیا ہے سر؟ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں اکثریت جاری ہے اور ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ یہاں قانون سازی کر سکیں، اور اس قسم کی قانون سازی جس سے قومی سلامتی اور خود مختاری پر سوالات اٹھائے جائیں اور بین الاقوامی دباؤ پر یا ہندوستان کے دباؤ پر کہ وہ بین الاقوامی دنیا میں ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور ہم یہاں پر قانون سازیوں پر قانون سازی کر کے اپنے ہی قوم کے لوگوں کو ان کی سلامتی کے اوپر سودا کریں اور خود مختاری کریں۔ اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کا FATF سے متعلقہ بلز کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا حکومت نام کی ہے، کام کی نہیں۔ حکومت نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں اپوزیشن کی چھوٹی جماعتوں کا FATF سے متعلقہ بلز کی بھرپور مخالفت کا فیصلہ۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری نے 24 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ حکومت نام کی ہے، کام کی نہیں۔ حکومت نے ایوان صدر کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے۔ دیکھیے حکومت نام کی حکومت ہے، کام کی حکومت تو نظر نہیں آئی۔ دونوں ایوان چل رہے ہوتے ہیں، دونوں ایوان موجود ہے، اور جیسے کہ صدارتی ہاؤس جو ہے وہ ایک آرڈیننس فیکٹری ہے جو آرڈیننس نافذ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ عرصہ پہلے بھی چپکے سے انہوں نے جوائنٹ سیشن کی بات کی، اور اب دوبارہ ابھی تک ہمیں باضابطہ اطلاع نہیں ہے جوائنٹ سیشن کی کہ جوائنٹ سیشن بلا رہے ہیں تو اس کا ایجنڈا کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایجنڈا جوائنٹ سیشن کا یہ ہوگا کہ 2 بل جو ہم نے یہاں سینٹ میں مسترد کیے، وہ 2 بل جو ہے وہ اس میں لا رہے ہیں اور اس سے وہ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ہماری جو چھوٹی پارٹیاں ہیں، ہمارا موقف تو وہی ہے، پہلے بھی ہم نے اس بل کی مخالفت کی تھی اور اب بھی ہم مخالفت کریں گے، لیکن بڑی پارٹیاں اب وہ کیا کریں گی ان کے لیے آزمائش ہے۔ آگے EPC بھی ہو رہی ہے اور ادھر یہ بل بھی آ گئے ہیں۔ امید اچھی رکھنی چاہیے اور مجھے توقع ہے کہ اب کی بار یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہے حکومت کے لیے سہولت کار نہیں بنیں گے، اور اگر بنتے ہیں تو پھر APC کی شکل میں مختلف ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل کی مخالفت کرے گی۔ اجلاس میں بل منظوری پر مسلم لیگ نون نے احتجاج کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ذیشان بھٹی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ ذیشان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ بالکل، دیکھیے جو منی لانڈرنگ سے متعلق بل تھے سینٹ سے مسترد ہو چکے تھے، لیکن حکومت نے ان بلوں کو منظور کرانے کے لیے آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر رکھا ہے۔ جو 4 بجے آج اجلاس ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اور اس وقت پارلیمنٹ میں جو صورتحال ہے، حکومتی جماعت اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہ مشاورت جاری رکھے ہوئے اور ہر حال میں یہ بل منظور کرانے کے لیے کوششیں جاری ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر اپوزیشن کی بات کی جائے تو اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ چھوٹی اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ ملا کے حکمت عملی بنا رہی ہیں کہ
किसी भी सूरत ये जो बिल है फैटिव से मुतल्लिक कानून साजी होने जा रही है इसको मंजूर नहीं होने देना। दोनों जो जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है उसमें भरपूर इस बिल की मुखालफत की जाएगी, जबकि जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने अपने अरकान असेंबली और पार्लियामेंटेरियन जो सेनेटर्स हैं उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने का हुक्म दे रखा है और उनका ये कहना है कि मुकम्मल तादाद में आज मुश्तरका इजलास में शिरकत करें, क्योंकि अपोजिशन की अगर मुश्तरका इजलास में कार्रवाई देखी जाए उनके सेनेट के अरकान जो हैं और कौमी असम्बली के अरकान को मिलाया जाए तो उनको जो हुकूमती और उनके इत्तेहादी हैं उनसे बढ़तरी हासिल है तादाद में। लेकिन हुकूमत जो है वो पूरी उम्मीद है अपने इत्तेहादियों के साथ इस वक्त मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म भी इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं और काफ लीग और जो MQM है जो इत्तेहादी हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी इस बिल की हमायत का ऐलान कर दिया और उन्होंने अपने अरकान को कहा है कि इस बिल को हर हाल में मंजूर कराने के लिए वोटिंग की जाए, इसके हक में वोट डाले जाए। लेकिन अभी अपोजिशन और हुकूमत दोनों जो है मुशावरत जारी रखे हुए अपने अपने इत्तेहादियों के साथ, लेकिन अपोजिशन का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आज भरपूर एहतजाज किया जाएगा और 4 बजे जो इजलास होना है मुश्तरका इजलास उसमें इस बिल को किसी सूरत कबूल नहीं होने देना। जी ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आपको इस हवाले से बता रहे हैं जैसा कि ज़ीशान हमें बता रहे थे मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की मुखालफत करेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 4 बजे होगा। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और वफ़्क इमलाक बिल्स की मंजूरी का इम्कान है। इसी पर बात करते हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आसमा शराजी साहिबा से। जी आसमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइए क्या हुकूमत अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि कौमी असम्बली के अंदर जो है वो हुकूमत की अक्सरियत है, जबकि जो हमारी सेनेट है उसके अंदर अपोजिशन की अक्सरियत है। तो अपोजिशन की अक्सरियत की वजह से सेनेट के अंदर उनको कामयाबी मिली है अपोजिशन को, जबकि हुकूमत को वहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कौमी असम्बली में के अंदर चूंकि इनकी अक्सरियत है PTI की और उनकी एलाइज की, लिहाजा नंबर उनके पास हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर उनके जो पिछली दफ़ा जो भी वोटिंग थी या उससे पहले जितनी वोटिंग होती रही उसमें BNP बैंगल हुकूमत के साथ खड़ी थी और बाकी लोग भी खड़े थे, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो जाहिर है कि उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपोजिशन का भी नंबर कोई कम नहीं है। जाहिर है कि अगर वो रिजेक्ट होती है तो हुकूमत को एक तरह से हजीमत का सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज ये है कि जो अब तक की सूरत हाल है उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कामयाबी मिले और इसमें उनके पास पूरा नंबर हो जाए। लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि नंबर स्केल के ऊपर जो है वो मामला देखने को मिलेगा, कितने लोग वोट करते हैं कितने नहीं करते। आपको याद होगा कि जो बजट पास होना था उसके हवाले से भी जो नंबर था वो पहले से कम था, तो उसके ऊपर भी बहुत सी जो है वो खबरें गर्दिश में आई थी। आज भी PTI अपनी तमाम अरकान को, अपने एलाइज को जो हैं अभी भी उनके साथ, मसलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म उनके साथ है, MKM उनके साथ है, उनके साथ जो है वो बाकी पार्टियां खास करके GDA भी मौजूद है, सिवाय BNP बैंगल के जो है वो बाकी सारी जमातें अभी तक उनके साथ हैं। तो नंबर उनके पास कंफर्टेबल है। अलबत्ता जॉइंट सेशन में सेनेट के अंदर का नंबर जो है वो बढ़ जाएगा, कौमी असेंबली से PTI का नंबर बढ़ जाएगा या हुकूमती नंबर बढ़ जाएगा। इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, दिलचस्प होगा देखना कि कितना नंबर जो है वो इस वोट को इस बिल को पड़ता है। टफ टाइम का तो इसलिए क्योंकि ये बिल जो है जाहिर है किसी भी हुकूमत के लिए कोई कानून साजी करना जो होता है वो अहम होता है, और इस बिल में खास करके ये दूसरी बार सेनेट में गया है और वहां से मुस्तरद हुआ है, जिसके बाद ज्वाइंट सेशन आज 4 बजे बुलाया गया है। हुकूमत को पहले से ये बात मालूम थी कि सेनेट के अंदर दोबारा से जो है वो एक हजीमत का सामना करना पड़ेगा या शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, जब भी ज्वाइंट सेशन जो है वो बुलाया गया है ताकि नंबर को पूरा किया जाए। तो एक तरह से दिलचस्प यूं होगा कि कितना नंबर आता है इसके ऊपर, क्योंकि अपोजिशन भी क्लेम करती रही है और कर रही है, उसमें JUIF भी है, जमात इस्लामी भी है। बहुत शुक्रिया आसमा शराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपना तज्जिया दे रही थी। इसी मामले पर बात करते हैं, सीनियर तज्जियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल में अपोजिशन ने ये फैसला किया है कि इस बिल की मुखालफत करेंगे, इस हवाले से क्या कहेंगे और क्या इस तमाम तर सूरत हाल के बाद हुकूमत अपने अहदाफ पूरे कर सकेगी? मेरा
सारा कोई पहले कोई डील हो जाए इनकी आपस में, तो फिर तो हो जाएगी, अगर नहीं होती तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मर्रा हो जाएगा। कुछ अगर अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं उनको मान लें, या हुकूमत को, पार्टी जो उनको अपोजिशन को कन्विंस कर ले, अपोजिशन कन्विंस कर ले उनको कि ये इंतकामी या तज़ीरी कार्रवाई नहीं है, और इस किस्म के इम्कान को ख़त्म करने के लिए इसमें मुनज़्ज़म तरमीम भी कर दी है, उस सूरत में हो जाएगा। नहीं तो फिर वो तो फिर भी जाएगा, लेकिन ऐसा कानून जो जिसकी कलीदी अहमियत हो टेररिज्म ख़त्म करने के लिए, वो अगर कंसेंसस से नहीं होता तो वो कोई उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और एफएटीएफ की जो स्टेक होल्डर हैं वो भी ये चाहेंगे कि ये मुतवक्का हो। ये मसला ऐसा है कि शायद टफ टाइम तो उन्होंने ऑलरेडी दिया कि वो मंजूर नहीं हुआ, और उसके बारे में रज़ा रब्बानी साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया था क्या मसाइल है। आज भी उन्होंने कहा, जैसा पीटीआई की हुकूमत की आदत है, ये स्टीम रोल तो कर सकती है, लेकिन ये ऐसा बिल नहीं जिसको प्रेफरेबली। बहुत शुक्रिया। सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना तजिया पेश कर रहे थे। मजीद खबरें शामिल करें। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM और काफ लीग का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। दोनों जमातों के अरकान कुछ देर बाद मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक होंगे। हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM और काफ लीग का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला सामने आया है, जबकि दोनों जमातों के अरकान कुछ देर बाद मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में भी शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी को मुश्तरका इजलास के एजेंडे पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन के हमरा मुश्तरका इजलास में एहतजाज के लिए तैयार है। मुतफ़िका हिकमत अमली के लिए अपोजिशन जमातों से राब्ते किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी को मुश्तरका इजलास के एजेंडे पर तहफ़्फ़ुज़ात है। पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन के हमरा मुश्तरका इजलास में एहतजाज के लिए तैयार है, जबकि मुतफ़िका हिकमत अमली के लिए अपोजिशन जमातों से राब्ते भी किए जा रहे हैं। अब गिनती नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ का स्पीकर कौमी असम्बली को दो टोक जवाब। ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर के इकदाम को गैर कानूनी करार दे दिया। कोरम की वजह से 1 घंटा मुलतवी रहने वाला इजलास अब नहीं हो सकता। हम कोर्ट में जाके चैलेंज कर देंगे इस इजलास को। रूल सस्पेंड किया है, रूल 5 सस्पेंड हुआ है। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। 1 मिनट मुश्ताक साहब, 1 घंटा 20 मिनट के बाद इजलास हुआ है। वो 1 घंटे वाला रूल हमने हाउस ने सस्पेंड किया है, रूल 5 के तहत वो सस्पेंड हो गया है। ये आपको गलत एडवाइस किया जा रहा है। ये गैर कानूनी इजलास, गैर आईनी इजलास है। हाँ जी, सादिक साहब प्लीज, सादिक साहब आप बता दीजिए प्लीज। सादिक साहब, सादिक साहब जी प्लीज। स्पीकर साहब मेरी सादिक साहब, सादिक साहब प्लीज। स्पीकर साहब, मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूं, 11:05 के ऊपर कोरम पॉइंट आउट हुआ था। एक रवायत भी होती है और एक रूल्स भी होते हैं। आपने उस रूल को सस्पेंड किया, आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर सस्पेंड कर दें। अगर हम मुझे बताएं रूल से नहीं चलेंगे, रूल है कि नहीं, अगर हम कानून कायदे से नहीं चलेंगे, अगर हम हर चीज को बुलडोज करेंगे, अगर हम हर चीज को कवानीन के मुतसादिम करेंगे, तो फिर हमें यहाँ बैठने, मैं कसम खा के कहता हूं, मैं कल कोलीग से कह रहा था, मेरा दिल नहीं चाहता यहाँ आके बैठने का। मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आइन में मौजूद है कि कौमी सलामती के मामलात पर किसी कानून को 6 माह तक तौसीह दी जा सकती है। इसी तरह असम्बली में जरूरी कानून साजी के लिए रूल मुअत्तल किया जा सकता है।
स्पीकर ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। अपोजिशन ने कहा है वो अदालत जाएगी, वो अकेले अदालत ना जाएं, उन्हें भी साथ ले जाएं। Constitutional provision is violated by the speaker or the deputy speaker or the chair, and no violation of the constitution is done by this August House. उन्होंने ये भी फरमाया, वो होते तो मैं तफसील से बात करता कि हम अदालत में जाएंगे, आप अदालत में अकेले मत जाएं, जिनको अदालतें बुला रही हैं उनको भी लेके जाएं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने CCPO लाहौर को तलबी के समन जारी कर दिए हैं। CCPO लाहौर के पेश ना होने पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया। आपको बताएं, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने CCPO लाहौर को तलबी के समन जारी कर दिए। CCPO लाहौर के पेश ना होने पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया है। CCPO लाहौर की तलबी के समन जारी किए गए थे। CCPO लाहौर पेश ना हुए, जिस पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हकूक़ के इजलास में लाहौर मोटरवे खातून ज़्यादती केस में CCPO लाहौर पेश ना होने पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया। कमेटी ने CCPO लाहौर को तलबी के समन जारी कर दिए। शहजादा सुल्तान DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर की कमेटी मोटरवे पर खातून के साथ ज़्यादती के बारे में ब्रीफिंग दी। तो आपको बता रहे हैं, सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने CCPO लाहौर को तलबी के समन जारी कर दिए। CCPO लाहौर के पेश ना होने पर अरकान ने बरहमी का इजहार किया। चेयरमैन मुस्तफ़ा नवाज खोखर की ज़ेर सदारत सेनेट कायमा कमेटी इंसानी हकूक के इजलास में लाहौर मोटरवे खातून ज़्यादती केस में CCPO लाहौर पेश ना होने पर अरकान ने इजहार बरहमी भी किया। कमेटी ने CCPO लाहौर को तलबी के समन जारी कर दिए। मोटरवे ज़्यादती केस, पुलिस ने फरार मुलजिम आबिद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया। ज़राए का कहना है मुतासिरा खातून को भी शनाख्त परेड कराने के लिए राजी कर लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, मोटरवे ज़्यादती केस, पुलिस ने फरार मुलजिम आबिद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। ज़राए का कहना है कि मुतासिरा खातून को भी शनाख्त परेड करने के लिए राजी कर लिया गया है। और इस्लामाबाद में खवातीन को हिरासा करने का एक और वाक़या पेश आया है। थाना कोहसार के इलाके में 5 नौजवान 2 खवातीन का पीछा करते रहे। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे सद्दाम मांगट से। जी सद्दाम, बताइएगा। आज बिल्कुल 2 खवातीन जो हैं वो सेक्टर F10 से F7 की तरफ आ रही थी। मारगला रोड से वो होते हुए ये सफर जो है वो तय कर रही थी। इसी दौरान 5 उबाश नौजवान लड़कों की जानिब से उनको रास्ते में तंग किया गया। फिर मारगला रोड पर उनको रोका गया और उनको जो है वो इंतहाई गलत लैंग्वेज उनके साथ इस्तेमाल की गई, गालियां दी गई, छेड़छाड़ की गई, जिस पर कोसार पुलिस की जानिब से इन मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन जिस गाड़ी पर वो सवार थे उसका नंबर सामने आने पर, रजिस्ट्रेशन और ये तमाम हकायक सामने होने के बावजूद भी कोसार पुलिस जो है वो इन लड़कों को ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी सद्दाम मांगट, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। GDA में दरारें पड़ गईं। अहम शख्सियात ने GDA से किनारा कशी इख्तियार कर ली। अली गोहर महर PTI में शमूलियत के लिए रजामंद हो गए। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा के खिलाफ भी लॉबिंग शुरू हो गई। गौस बख्श महर को वफाकी वजीर बनाने के लिए कोशिशें जारी हैं। मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोडियो से जान लेते हैं। जी आज़ाद, बताइए क्या होने जा रहा है सिंध की सियासत में? जी बिल्कुल, इस वक्त सिंध की सियासी फिजा जो है वो बदल चुकी है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुखालफ इत्तेहाद है सिंध ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA, जिसकी क़यादत में जो है अख्तिलाफ़ात सामने आ चुके हैं। जो इनके अहम रहनुमा हैं सरदार अली गौहर खान महर, जो रुकन सिंध असेंबली भी हैं, उन्होंने जो है कुछ दिन कबल साबिक़ सदर जो है PTI के दीगर जो रहनुमा है उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है PTI में शमूलियत पर जो है रजामंदी जाहिर की है। वो इमरान खान से जल्द मुलाकात करेंगे, जिसमें वो PTI में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इसके साथ साथ अरबाब गुलाम रहीम, गुलाम रजा जतोई, दीगर जो रहनुमा जो है उन्होंने भी किनारा कशी इख्तियार कर ली है। इस हवाले से इस वक्त सरदार अली गौहर महर जो है उन्होंने फहमीदा मिर्जा के खिलाफ भी लॉबिंग। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची पैकेज पर इस तरह अमल होते नजर आ रहा है जैसे 162 अरब वाले पैकेज का हुआ था। हम चाहते हैं कराची को सिर्फ कराची बना दें, हमें पैकेज से लॉलीपॉप ना दिया जाए।
2 साल में टोटल 8 अरब रुपए भी खर्च नहीं किए और बजट में भी नहीं रखे हुए, सिर्फ पैकेज का ऐलान आप करते हैं। पीपल्स पार्टी का 90% सिंध हुकूमत का जो रेवेन्यू है वो कराची से जनरेट होता है, लेकिन कराची पे वो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगाते। उन्होंने बजट में 3 अरब रुपए रखे। हमारा ये मुतालबा है कि कराची को उसका हक दो। हम खैरात नहीं मांगते, हक मांगते हैं और सबके लिए मांगते हैं। और क्या इलेक्ट्रिक से भी अब सवाल होने लग गए हैं और रिपोर्ट्स भी इनके खिलाफ ठीक से बनने लग गई हैं, वरना तो ये नेपरा का इदारा ही मशकूक इदारा चल रहा था। और हम तवक्को रखते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जिस तरह इनकी पिछली रिपोर्ट्स आई हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे जमा हुई है, जिसमें जमात इस्लामी की रिपोर्ट, उसमें लिखा हुआ है कि जमात इस्लामी ने मिलकर बाकायदा तजावीज़ तहरीरी भी दी हैं और मुलाकात करके भी। इस्लामाबाद चिड़ियाघर से 51 हाथी के कंबोडिया मुंतकिल करने पर कितना खर्चा होगा, 24 न्यूज़ ने पता लगा लिया। 51 हाथी के खुसूसी पिंजरे और मुंतकिली पर 30 लाख रुपए का खर्च होगा। मज़ीद तफसीलात रोज़ीना अली से जान लेते हैं। जी रोज़ीना, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? बिल्कुल जी, तन्हा 51 हाथी को यहाँ से इस्लामाबाद से कंबोडिया मुंतकिल करने के लिए खुसूसी पिंजरा बनाया जाना है और उस खुसूसी पिंजरे पर बताया जा रहा है कि 30 लाख रुपए की लागत आनी है। इसके लिए कोटेशन भी यहाँ से हो चुकी है। तमाम इसमें जो है यूरोपियन माहिरीन जो ख़ास तौर पर हाथियों के पिंजरों के ऊपर काम करते हैं उनकी मदद भी ली जा सकती है। खुसूसी टीम यहाँ पर पहुँचेगी और कल इस हवाले से अहम इजलास भी होगा और 51 हाथी के लिए मजीद अहम फैसलों की भी तवक्को की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रोज़ीना अली हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में एंटी रेबीज़ वैक्सीन नायाब होने लगी है। कौमी इदारा सेहत में इक़दाम ना होने की वजह से बहरान का खदशा बढ़ने लगा है। गुज़श्ता साल कौमी इदारा सेहत की जानिब से 2,25,000 डोज बनाई गई। तफसीलात जानते हैं सबा बजीर से। सबा बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन है वो नायाब होने लगी है। वजारत सेहत की जानिब से इक़दाम ना होने के बराबर हो गए हैं और बड़े बहरान का खदशा जो है वो पैदा हो गया है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से गुज़श्ता साल 2,25,000 डोज बनाए गए थे। मजमूई पैदावार का 62% बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। बढ़ती हुई जरूरत के पेश नजर एनालिस्ट को वजारत सेहत को 6 लाख डोज की तजवीज़ दी गई है, जो अब तक भी तातुल का शिकार है। और ये वैक्सीन बहुत शुक्रिया आपका। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। चकवाल से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के शहीद सूबेदार मुनव्वर हुसैन की आज 55वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं मोहसिन जाफरी से। जी मोहसिन बताइएगा। जी बेकर, शहीद की जो मौत है वह कौम की याद है। चकवाल को गाजियों और शहीदों की सरजमीन कहा जाता है। चकवाल का कोई ऐसा कब्रिस्तान, कोई ऐसा गाँव मौजूद नहीं जहाँ पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम मौजूद ना हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नायक सूबेदार मुनव्वर हुसैन के घर, जिनकी आज बरसी मनाई जा रही है। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनके वालिद की शहादत पे क्या तासरात हैं। जी मेरे वालिद साहब नायब सूबेदार मुनव्वर हुसैन शहीद, हमें उनकी शहादत पे बड़ा फ़ख्र है। आज उनकी बरसी है तो उनकी याद ज़ाहिर है हर वक्त ही ताज़ा रहती है। जी बिल्कुल नहीं कहना है कि मेरे वालिद साहब की आज बरसी है, लेकिन हमें भूले कभी भी नहीं है। ये ऐसे जज्बे हैं जो चकवाल के हर गांव में पाए जाते हैं, जिनके कहीं के वालिद शहीद हो चुके हैं, कहीं के बेटे शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके सर्जन से मोहसिन बहुत शुक्रिया।